नमस्कार। तो हमने पिछली बार चौथी मेथड देखी थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे थे, किस तरह से वैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में, और इन क्वेश्चंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। So let us come to this. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. तो एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरी चीज कितने दिन मेस के अंदर खाना खा रहा है। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. तो यहाँ पे हमको फिक्स्ड चार्ज भी चाहिए और कॉस्ट ऑफ फूड भी चाहिए पर डे का। तो वी विल सपोज दैट लेट फिक्स्ड चार्ज is equal to rupees X and per day food charge per day, say this is rupees Y. ठीक है। Now in first case for student A, now when a student A takes food for 20 days, तो एक फिक्स्ड चार्ज तो X तो उसको देना ही है, और एक दिन का Y तो 20 दिन का 20Y. सो फॉर स्टूडेंट A, X plus 20Y is equal to, he has to give rupees 1000. So this is 1000. ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। देन फॉर स्टूडेंट बी, बी के लिए ये 26 दिन तक रहा है, 26 दिन तक इसने खाना खाया है, तो इसके लिए हो जाएगा x plus 26y is equal to, and the total charge is 1180, so 1180 सेकेंड पार्ट। ठीक है। अब देखिए, इनको किसी भी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजीली एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। अगर हम सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा। 26y minus 20y means 6y is equal to, and here 1180 minus 1000, so this will be 180, right? So y will be equal to 180 upon 6 means 30 rupees. तो खाने का चार्ज 30 रुपये है, और इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो अगर हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies x plus 20y means 20 into 30 is equal to 1000. इसको तो x plus 600 is equal to 1000. Therefore, x will be equal to 1000 minus 600 means this fixed charge is 400 rupees. So fixed charge is 400 and cost of the food per day, this is
30 rupees. ओके, चलिए आगे देखें. यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So this is very good question. Here we will suppose that in solution. अब यहाँ तो टोटल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हम सबसे पहले अगर सपोज करें कि x क्वेश्चंस इसने करेक्ट आंसर किए हैं और y क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस y हो जाएगा. हम x और y की वैल्यू निकाल के x प्लस y में पुट कर दें तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा. सो वी विल सपोज लेट number of correct answers is equal to x and number of wrong answers is equal to y. Now, first case is for Yash, so case 1. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer. 3 marks for each right answer, and there are x right answers. So total marks in right answer will become 3x, right? So marks for correct answer, right answer, this will be, because 3 marks for right answer, so this is 3x, and losing 1 mark for each wrong answer. So marks for wrong answer, 1 mark, so 1 into y. This will be deducted from this correct answers marks. So it is given ये 3x मार्क्स तो इसको करेक्ट उसमें मिल गए, लेकिन y मार्क्स उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मीन्स 3x माइनस y इज इक्वल टू 40. ये पहली इक्वेशन बन गई. देन सेकेंड केस, केस 2. सेकेंड केस में had 4 marks been awarded for each correct answer. So marks for right answer अब यहाँ पे 4 नंबर करेक्ट आंसर्स के हैं और उसने x क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो दिस विल बिकम 4x. And marks for wrong answer इसमें 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, एक उस पे, तो y आंसर्स में 2y हो जाएगा. और यहाँ पे इट इज गिवन फोर एक्स मार्क्स जो इसने मिले इसको, उसमें से 2y मार्क्स इसके कम हो गए और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50 मार्क्स. सो दिस इज इक्वल टू 50. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई.
ठीक है। अब हमको इसमें से इन दोनों इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे y है, माइनस y है, इधर 2y है। अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन 1 is multiplied by 2 and then minus equation 2. This will imply, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 80 एंड दिस इज 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। दिस विल बी माइनस, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस। तो यहाँ से 2y और माइनस 2y कैंसिल हो गया। 6x माइनस 4x, दिस इज 2x इज इक्वल टू 80 में से 30 गए तो, हाँ 80 में से 50 गए तो 30 आ गया। तो x इज इक्वल टू 15। मतलब इसने 15 क्वेश्चंस तो करेक्ट किए थे। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज यहाँ पे 3 इंटू 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। तो दिस इज 45 और इस 40 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस 40 हो गया और ये माइनस y उधर गया तो प्लस y हो गया, मीन्स y इज इक्वल टू 5। तो इसने 15 क्वेश्चंस तो करेक्ट किए हैं और 5 क्वेश्चंस गलत करके आया है। लेकिन टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई। सो देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस ये हो जाएंगे x प्लस वाई। x मीन्स 15 प्लस y मीन्स 5, मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन पेपर में जिसको आंसर करना था और उसने 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए और 5 क्वेश्चंस रॉन्ग करके आ गया। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. This is also very good questions, important. So dimensions we want, so we will suppose that let length is equal to x, breadth is equal to y, and therefore area is equal to x into y. Length into breadth means x into y. Now here first case 1. In first case here the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if length is reduced by 5 units. Means new length is equal to length is reduced by 5 units, मतलब x थी तो x minus 5 कर दी, and breadth is increased by 3 units, so new breadth
ये इंक्रीज कर दी 3 यूनिट से तो y+3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया कितना हो गया, दिस गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो पहले जो एरिया XY था ये 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो गया। सो न्यू एरिया ये 9 यूनिट से कम हो गया, मतलब पहले XY था तो ये -9 हो गया। ठीक है, नाउ न्यू लेंथ into new breadth will be equal to new area. New length means x minus 5, new breadth means y+3 is equal to new area, this is xy minus 9। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, x into y, this is xy, x into 3, this is 3x, minus 5 into y, this is minus 5y, and minus 5 into 3, so this is minus 15, is equal to xy minus 9। यहाँ पे ये xy से ये xy कैंसिल हो गया और इस 15 को हम उधर शिफ्ट कर दें तो पहली इक्वेशन हमारे पास में आ गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 15 उधर गया तो +15 माइनस 9 मीन दिस इज इक्वल टू 6। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई। अब सेकंड केस में, केस 2, if we increase the length by 3 तो new length is equal to, this is increased by 3 means x+3 हो गया, and breadth by 2 units तो new breadth ये y+3। तो if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units means this is y+2, then area is increased by means new area becomes, पहले था xy और ये इंक्रीज हो गया 67 से तो +67 हो गया। सो न्यू लेंथ into new breadth is equal to new area means x+3 into x+2 is equal to xy +67। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, ये y+2 है, x into y, this is xy, x into 2, this is +2x, 3 into y, this is 3y, and 3 into 2, this is +6 is equal to xy +67। वापस से xy और xy यहाँ पे कैंसिल हो गए। So this equation becomes 2x plus 3y और इसको इधर शिफ्ट किया तो -6 हो गया, तो दिस इज 67 माइनस 6 मीन दिस विल बी 61। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमारे पास में x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3x, इधर 2x, इधर 5y और इधर 3y। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें
तो y विल बी एलिमिनेटेड। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और प्लस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। दिस इम्प्लाइज, तो देखिए इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू, इसको 3 से किया तो 18 हो गया, और इसको 5 से तो 5 इंटू 2x मतलब 10x और प्लस 15y इज इक्वल टू, यहाँ पे 61 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 हो जाएगा, 305 हो गया है ना, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसको ऐड कर दें, ये माइनस है ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गया। सो दिस विल बिकम 19x इज इक्वल टू, दिस इज 3, 13, then 2 and then 3. So x will be equal to 323 upon 19. So one time it will go, then 7 times, 9 times, so this will be 13, 130. So you can just verify also, 19 into 17. So this is 3, 6, 7 and 6. Then 19. So this will be 3, 2, 3. Yes, 323. So x is equal to, this is 17 units, and this value of x, if we will put in equation 1 or equation 2, कहीं पे भी अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन 1 implies, first equation here 3x means 3 into 17 minus 5y is equal to, here this is 6. So this will be 51. इसको 6 को इधर शिफ्ट किया तो -6 is equal to 5y, means y will be equal to 45 upon 5, mean this is 9. So length is equal to 17 and breadth will be equal to 9 units. So these are the dimensions of the rectangle. Okay. तो अब हम equation reducible to linear equation in 2 variable के questions देखेंगे। Solve the pair of linear equations। यहाँ पे 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13 है, 5 upon x plus 4 upon y is equal to -2 है। अगर हम पुट कर दें 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v, तो ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, दिस and second equation, they will reduce to, यहाँ पे 2 into 1 upon x लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा 3v is equal to 13। ऐसे ही 5 into 1 upon x तो 5u और प्लस 4v is equal to ये -2,
तो ये हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गई। अब जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वैसे ही थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, और यहाँ से हम u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमको v को कैंसिल करना है तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें थर्ड इक्वेशन को 4 से, और इसको फोर्थ इक्वेशन को 3 से कर दें। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से और माइनस इक्वेशन, ये 1 नहीं है, ये 3 है, एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इम्प्लाइज। तो देखिए, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8u प्लस 12v इज इक्वल टू, 4 से इसको किया तो 52, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 15u और प्लस 12v इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 तो -6। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो 12u और -12u कैंसिल हो गया, -15u प्लस 8u, सो दिस विल बी -7u इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया 58। So, from here, this u will be equal to 58 upon -7. This will be 58 upon -7. This is by 3. So, this is the value of u. So, u was 1 upon x is equal to 58 upon -7. So, this implies x will be equal to -7 upon 58. अब चाहे इस वैल्यू को या फिर u की वैल्यू को हम थर्ड या फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो अगर हम इक्वेशन 4 के अंदर अगर इसको पुट करते हैं, इक्वेशन 4 इम्प्लाइज u की जगह है यहाँ पे 58 अपॉन -7, सो दिस इज 5 इंटू u is 58 upon -7 and plus 4v plus 4v is equal to, this is -2. So, 4v will be equal to, इसको उधर शिफ्ट करें, so ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, this is 40, 4, 25 and 4, 29 and upon -7, so this will become plus, so +7 and then -2, right? यहाँ पे भी एलसीएम ले ले हम, एलसीएम हो गया 7, तो 290 -14, so v is equal to, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 276 और अपॉन ये 4 नीचे आ गया तो 4 इंटू
7, कैन बी कैंसिल इट, अगर 2 से करा तो ये 2 हो गया, दिस इज 1 3 8, वापस 2 से करा तो ये हो जाएगा 69। ओके, तो ये v की वैल्यू है। v क्या था, दिस वॉज 1 अपॉन, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन y इज इक्वल टू 69 upon 7. So this will imply y is equal to 7 upon 69. तो इस तरह से अगर इक्वेशंस इस फॉर्म में दी हुई हो तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई को हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ u एंड v, और u और v की इक्वेशंस को सॉल्व करके u और v निकाल लें। लेकिन u 1 अपॉन x है तो x की वैल्यू निकल जाएगी, v 1 अपॉन y है तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देन कम टू नेक्स्ट, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो हमको बोट की स्पीड स्थिर पानी में और स्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी है। तो हम सपोज करेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दिस इज x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर ये y किलोमीटर पर आवर है तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर हम नदी के बहाव के साथ में चलें उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और अगर नदी के बहाव के अगेंस्ट अगर स्विम करते हैं या ट्रैवल करते हैं तो वो अपस्ट्रीम कहलाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी x प्लस वाई, एंड अपस्ट्रीम स्पीड will be is equal to x माइनस वाई हो गई। अब देखिए यहाँ पे ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours। मतलब हमको ये मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम टाइम के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो वी नो speed is equal to distance upon time. Therefore, time is equal to distance upon speed. अब यहाँ से फर्स्ट केस, केस नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो जब 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ले रहे हैं, इसका मतलब
डिस्टेंस हो गया 44 और डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी x प्लस वाई। और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए टाइम कितना लगेगा? 30 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई। ठीक है, सो in first case 30 kilometer upstream, time taken will be 30 upon x minus y plus 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स। So this is our first equation. And second case, case 2. Second case के अंदर in 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए जो टाइम होगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई होगा और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तो 55 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड इज एक्स प्लस वाई और ये टोटल टाइम 13 आवर्स हो रहा है। सो दिस इज 13 से दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u ले लें और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v ले लें। ठीक है, तो पुट 1 upon x minus y is equal to u and 1 upon x plus y is equal to v ले लें। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन 1 विल रिड्यूस टू, ये हो जाएगी 30u प्लस 44v is equal to this is 10 और इक्वेशन 2 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। अगर ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इसमें अगर u को हटाना है तो हम इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो दिस विल बिकम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 120u, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176v इज इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40। ठीक है, अच्छा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से तो ये हो गया 120u प्लस इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 165v इज इक्वल टू, इसको 3 से किया तो 39
ठीक है। और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया। 176 में से 165 गया तो 11v इज इक्वल टू ये हो गया 1। लेकिन v इज इक्वल टू, तो यहां से v इज इक्वल टू, अब v क्या है 1/x प्लस वाई है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 11 इधर आ गया तो 1/11 हो गया, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। और इस v की वैल्यू को 1/11 को हम या तो थर्ड इक्वेशन में या फिर फोर्थ इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 implies ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 30u प्लस 44 इंटू v है 1/11, तो ये 1/11 इज इक्वल टू 10। इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, सो दिस इम्प्लाइज 30u is equal to 10 minus 4, means this is 6. So this implies u is equal to 6/30, और u हो गया, u means this implies u is 1/x minus y is equal to 6/30 means 1/5. So this implies x minus y is equal to 5. ये फिफ्थ इक्वेशन, ये हो गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो इक्वेशन 5 प्लस 6 implies इनको अगर ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, अगर इक्वेशन 5 में पुट करें तो दिस विल इम्प्लाई 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, सो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 मीन दिस इज 3। तो स्पीड ऑफ द बोट ये है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट ये है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन हो गई है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, चलिए आगे देखें। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ये इस तरह के जो वर्क वाले क्वेश्चंस हैं, और या फिर
नल वाले क्वेश्चंस हैं कि एक नल किसी टंकी को इतने घंटे में भरता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमको हमेशा एक दिन का या एक घंटे का काम निकालना पड़ेगा, या एक घंटे में नल कितना भरता है ये निकालना पड़ेगा। और इसी से इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही एक घंटे के लिए निकाल के फिर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन देखें इसको। तो हम सपोज करेंगे कि वन वुमन कैन अलोन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। सो लेट वन वुमन कैन complete a work in X। अब यहाँ पे डेज के अंदर है तो X डेज, एंड वन मैन कैन complete a work in Y days। Therefore, part of work done by one woman in one day। तो एक दिन में देखिए, अगर 2 दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? आधा। अगर 4 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? चौथाई, मतलब 1/4। तो जितने नंबर ऑफ डेज रहते हैं उसका रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे अगर x डेज में काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? 1/x। इसी तरह से पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे विल बी इक्वल टू 1/y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो अगर एक वुमन एक दिन में 1/x पार्ट ऑफ द वर्क करती है तो 2 औरतें मिलके कितना करेंगे? दिस इंटू 2। 5 मैन मतलब 1/y इंटू 5। इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर, तो फर्स्ट केस के लिए तो हम लिख लेते हैं, लेकिन आगे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो देयरफॉर पार्ट ऑफ वर्क डन बाय, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर 2 वुमेन, तो 2 वुमेन इन 1 डे विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/x, means this is 2/x। and part of work done by, now here 5 men in 1 day will be 5/y। तो एक दिन के अंदर अगर ये मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में काम कितना होगा? 2/x प्लस 5/y। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर ये एक साथ में कर रहे हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। जब 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा? 1/4। सो देयरफॉर पार्ट ऑफ वर्क डन बाय, अब इसको अगर कंबाइन करें, 2 women and 5 men in 1 day
तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y। लेकिन काम हो रहा है 4 दिन में कंप्लीट, तो ये तो 1 दिन का काम है, तो ये 1 दिन का काम 1/4 के बराबर होगा। सो इट इज गिवन this 2/x plus 5/y is equal to 1/4, क्योंकि 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो 1 दिन में 1/4 काम होगा, तो दिस विल बी द इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट मैंने आपको लिख के बतला दिया, दूसरा पार्ट वापस से हम इतना नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, तो देखिए यहां से 3 women, तो यहाँ पे जहाँ पे 2 women थे, तो यहाँ पे 3 women मीन 3/x हो जाएगा, 6 men मतलब 6/y हो जाएगा, can finish it in 3 days, so this will become 1/3। ये आप सेकेंड केस के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो। So here we will also write case 2, it is given 3 women means 3/x plus 6 men means 6/y is equal to, this is 3 means 1/3. So if this is first equation, this will be second equation, और ये दोनों इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म वाली है, मतलब यहाँ पे 1/x की जगह हमको u रखना पड़ेगा और 1/y की जगह हमको v रखना पड़ेगा। सो पुट 1/x is equal to u, 1/y is equal to v, therefore equation 1 will become see, this will become 2u plus 5v, 2u plus 5v is equal to 1/4. Say this is third equation, and this will be equation 2 implies 3u plus 6v is equal to 1/3. अब this is equal to 1/3, अगर हम इसको सपोज करें कि फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के लिए हमको अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और u को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर इसको 3 से करेंगे तो 2 × 3 दिस इज 6, 3 × 5 दिस इज 15v इज इक्वल टू यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3u दिस इज 6u एंड 2 × 6v मीन्स 12v, और ये हो गया 1/3 को 2 से किया तो 2/3 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 6u और -6u कैंसिल हो गया, 15v माइनस 12v, तो ये आ गया 3v, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, यहाँ एलसीएम लिया तो 12 आ गया, 3 × 3 this is 9, 4 × 2 this is 8, means this is 1/12, और इस 3 को इधर ले गए तो v is equal to 1/12।
12 इंटू 3 मतलब 36 हो गया, लेकिन v होता है 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36, मतलब y इज इक्वल टू हो गया 36 डेज। मतलब एक आदमी इस काम को 36 दिन में कंप्लीट करेगा। अब हम ये देखें कि लेडी कितनी देर में इसको कंप्लीट करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, ये v की वैल्यू 1/36, इसको हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, या तो थर्ड इक्वेशन में और या फिर फोर्थ इक्वेशन में। तो v इज इक्वल टू, अगर 36 हम यहाँ पे अगर इसको फोर्थ इक्वेशन में रखें, तो इक्वेशन 4 implies ये है 3u एंड प्लस 6 इंटू v मतलब 1/36 इज इक्वल टू, दिस इज 1/3। ये 6 से ये 36 कैंसिल हुआ 6 टाइम, सो 3u इज इक्वल टू 1/3, और इस 1/6 को हम उधर शिफ्ट कर दें तो -1/6, एलसीएम आ गया 6, तो दिस इज 2 - 1 मीन दिस इज 1/6, सो u इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3 मतलब 1/18, और u मतलब 1/x is equal to 1/18, so x will be equal to 18 days। तो एक लेडी, चूंकि ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है और लेडीज इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, तो एक लेडी 18 दिन में कंप्लीट कर देगी, जबकि आदमी को उसी काम को करने में 36 दिन लग रहे हैं। बट वी हैव नथिंग टू बॉदर अबाउट इट, हमको तो मैथमेटिक्स से काम है। तो मैथमेटिक्स में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, वी विल डू इट लाइक दिस एंड वी विल जस्ट सी व्हाट इज आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आपको बतला रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह के और क्वेश्चंस करने चाहिए। सिर्फ एक एक क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चंस इस तरह के कर लेने चाहिए। चलिए आगे देखें। Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of the bus separately. So we will suppose that the speed of the train, if this is x, and speed of the bus, if suppose this is y. So in solution, देखिए यहाँ पे बोर्ड में जगह कम है, तो हम सब स्टेप्स लिखने की जगह थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिखेंगे, आप उसको समझते जाएं। लेकिन जब आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको सब स्टेप्स लिखने की है। ठीक है, तो हम अगर सपोज करें कि स्पीड ऑफ द ट्रेन x है और स्पीड ऑफ बस ये y है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर। अब देखिए फर्स्ट केस में शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग मतलब कितना हो जाएगा, 300 में से 60 किलोमीटर कम कर दें
तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल कर रहा। अच्छा, यहाँ पे भी टाइम 4 आवर्स, तो हमको स्पीड इज इक्वल टू, वी नो स्पीड is equal to distance upon time. Therefore, time is equal to distance upon speed. ठीक है। अब देखिए फर्स्ट केस के अंदर, केस 1, फर्स्ट केस में जब वो 40 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, जैसा हमने क्वेश्चन किया था अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड वाला, उसमें भी हमने टाइम निकाला था, दो डिफरेंट अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में। तो यहाँ पे क्योंकि टोटल टाइम 4 घंटे दिया हुआ है, 60 किलोमीटर चलने के लिए, अब देखिए ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और स्पीड हमने सपोज किया है x, और प्लस रिमेनिंग मतलब 240 किलोमीटर जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल कर रहा है, तो इसके लिए टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस 240 अपॉन वाई। लेकिन ये टोटल टाइम 4 घंटे है, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना। देन सेकेंड केस, केस 2, केस 2 में इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 अपॉन x, ये कितनी देर ट्रेन से चली, एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 300 में से 100 किलोमीटर तो ट्रेन से, तो 200 किलोमीटर बस से, और टाइम हो जाएगा 200 अपॉन वाई। लेकिन ये टाइम कितना, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स लॉन्गर। पहले कितना टाइम लग रहा था, 4 घंटे लग रहे थे, 4 घंटे, अब 4 घंटे 10 मिनट ज़्यादा है, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 घंटे और प्लस 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो ये 10 मिनट्स, और इसको 60 से हम डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 4 प्लस दिस, तो दिस विल बी 4 प्लस 1 अपॉन 6 मीन दिस विल बिकम 25 अपॉन 6। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब वापस से ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्म में है, सो वी विल पुट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, 1 upon y is equal to v. So this equation will become equation 1 implies ये हो जाएगी 60u plus 240v is equal to 4. इसको हम 4 से थ्रू आउट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1। सपोज दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 2 implies, इक्वेशन 2 implies, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी 100u प्लस 200v इज इक्वल टू,
ये 25/6, 25/6, इसको भी 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो जिससे कैलकुलेशंस थोड़े से कम हो जाएं। 25 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/6 से दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लें। यहाँ पे 15u है और 60v इज इक्वल टू 1 है। Now, if we want to cancel this 8, तो इसको या हम 6 को भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24u प्लस 48v इज इक्वल टू 1। इसको हम फोर्थ इक्वेशन अगर बना लें, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हमारे को किसी भी मेथड से, या तो यूनिट एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हमको u को कैंसिल करना है, इधर 15 है इधर 24 है, तो इसका एलसीएम ले लें 15 और 24 का। सो बाय 3 वी कैन डिवाइड 5 टाइम्स और 8 टाइम्स। सो नाउ दिस विल बी 40 and 120. 120, this is LCM. If we want to bring 120, then this should be multiplied by 8. Equation 3 multiply by 8. So 15 into 8, this will become 120. And minus. Then this one, equation 4, इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर 5 से, तो ये 120 आ जाएगा। तो इक्वेशन 3, दिस विल बिकम, इसको मल्टीप्लाई किया 8 से तो ये हो गया 120u प्लस, और इसको भी मल्टीप्लाई किया 8 से 480v इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 8 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 24 into 5, so this is 120u plus, then multiply this also by 5, so this will be 44, 240 v is equal to, इसको 5 से, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस, so this will cancel and this will be 240v is equal to, this is 3, so v is equal to 3/240, means this will imply v is 1/y, 1/y is equal to, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 80 टाइम्स 1/80, so this implies y is equal to 80। मतलब यहाँ पे बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 या इवन इक्वेशन 1 या 2, इनमें किसी में भी अगर पुट कर दें y की वैल्यू, तो देखिए अगर y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन 1 implies
यहाँ पे हो जाएगा 60/x प्लस ये है 240/80, 240/80. So this will cancel 3 times, is equal to 4. So 60/x is equal to 4 minus 3 is equal to 1. So x is equal to 60. So the speed of the train will be 60 and the speed of the bus will be 80 kilometer per hour. So with this this chapter finishes, but this is a really very good chapter from examination point of view also. This is important. Work hard for this.